So this is an article that we are going to read. फटाफट पहले, right? Good evening, Kushi. We are going to read this particular article. The ghost of Section 66A. The Supreme Court strictures and the center's note underline the letter of the law. खैर ये नहीं पढ़ना है अपने को. So we'll try to quickly read this particular small article and we'll try to understand what this article is saying. Okay. अरे यार जल्दी आ जाओ सब कोई. Good evening, good evening, good evening, good evening to everyone. चलो. So I am as I am highlighting, read it like in that speed only. जितना तेज़ी से highlight कर रहा हूँ आप उतनी तेज़ी से इसको read करिएगा, ठीक है? यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा, ठीक है? We'll try to stop here. In this article, arbitrarily, excessively and disproportionately invades the right of free speech. Okay, so it comes into a mind. Good evening, Sanskriti. It comes into a mind. What is that? Okay, so start reading now. All right, so now you know the legal question here. The legal question is that Section 66 of the Information Technology is dead now, which means that this is saying that Information Technology Act का Section 66A अभी valid नहीं है, ठीक है? अब आपको अगर Section 66A के बारे में पता है तो देखिए आपको एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज देन यू विल नो कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और the judgment was Shreya Singhal versus Union of India of 2040. But let us assume that you don't know that kind of information. From this relevant fact, you can simply pick it out that even after this particular case, this particular section was declared unconstitutional, its misuse was continued in police stations across the country where people were being prosecuted or cases were being registered for their offensive online posts. Now let us come to the second paragraph. Alright, so I have a question here. Article Section 66A of the Information Technology Act was introduced in the year 2000. This statement is true or false? Section 66A of the Information Technology Act 2000 was introduced in the year 2000. This statement is true or false? Arey, please type it down. I can't see your thumbs up or thumbs down, है ना? Because I'm sharing a screen, so मैं दूसरी screen पे हूँ. So if you will put a thumbs up, if you agree, put a thumbs up, so that I will be able to hear the voices. Do you agree to this statement after reading this passage? Okay. It's clearly written here. यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ. क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो सेंटर से रिस्पांस मांगा है, मतलब सेंटर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है. अब यहाँ पे सेंटर का मतलब आप क्या समझते हैं हमेशा? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? सेंटर हैज़ रिटन टू स्टेट गवर्नमेंट्स. सेंटर ने क्या बोला है? सेंटर ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जो भी आपने मेमो टू द पुलिस फोर्स है, मेमो टू द पुलिस फोर्स का मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि डायरेक्ट करिए अपने सभी पुलिस ऑफिसर्स को कि सेक्शन 66A का केस रजिस्टर करना बंद करें और जो भी केसेस रजिस्टर कर दिए हैं उसको विड्रॉ करें. इज दिस द कोर्ट सेइंग और द गवर्नमेंट सेइंग? दिस इज द गवर्नमेंट सेइंग, नॉट द कोर्ट सेइंग, राइट?
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे क्लैट कंसोर्शियम ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो यू नो दैट इफ दिस स्टेटमेंट इज रिटन इन वन ऑफ द ऑप्शंस देन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट, बिकॉज the direction given to the state governments to hand over the information to the police force indicating that section 66A is unconstitutional and withdraw all the cases registered, this is a direction being given by the central government to the state government and it is not a part of the Supreme Court. Supreme Court ने क्योंकि सेंटर से सवाल पूछा और बोला कि आप ज़रा हमें रिस्पॉन्स बताइए कि ये क्यों हो रहा है, तो सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग को समझते हुए necessary directions pass कर दिए. Introduced by the UPA government, the amendment to the IT Act gave government the power to arrest and imprison an individual for allegedly offensive and menacing online posts and was passed without discussion in the parliament. Okay. Now, second question that CLAT consortium will frame from this particular statement is that what could have been the reason for declaring Section 66A as unconstitutional. Right now, information ध्यान से पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 में कांग्रेस गवर्नमेंट जो है अलायंस ऑफ कांग्रेस, उसने 2008 में इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया जिस प्रोविज़न के अंडर गवर्नमेंट को पावर मिलती है दो चीज़ करने की, अरेस्ट एंड इम्प्रिजन. गवर्नमेंट को क्या पावर मिलती है? अरेस्ट एंड इम्प्रिजन. अरेस्ट का मतलब ये है कि आपको पुलिस थाने में रख लिया जाएगा. इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये है कि उस ऑफेंस के अंदर सेक्शन 66A के अंदर कुछ टेन्योर ऑफ पनिशमेंट मेंशन हुआ होगा. तो ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा, अरेस्ट और इम्प्रिजन का क्या मतलब होता है और डिफरेंस क्या है. अरेस्ट का मतलब ये है कि आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है. इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये है कि आपको कॉन्विक्ट घोषित करके जेल दे दी जाएगी. यानी सेक्शन 66A के अंदर पनिशमेंट भी दी हुई है और ऑफेंस भी दिया हुआ है. ऑफेंस क्या है? अगर आप मिनेसिंग और ऑफेंसिव ऑनलाइन पोस्ट डालते हैं तो. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट, राइट, दैट इट वाज पास्ड विदाउट डिस्कशन इन द पार्लियामेंट. Discussion in the parliament. Okay, is this the reason why the Supreme Court has declared this particular provision as unconstitutional? What do you think? This particular section 66A was declared unconstitutional because it was passed without discussion in the parliament. All right, are you sure about this? Everybody is saying no, it can't be the reason. Now the point is that you are able to read the next passage and then only you are able to make sense out of it. Okay, if you are able to read the next passage, then you are able to make sense out of it. And what it is written that this section 66A is so widely that virtually any opinion on any subject would be covered by it, and if it is to withstand the test of constitutionality, the chilling effect on free speech would be total. The Supreme Court of India had stated, so I'm writing down the statement in the question in the chat box, okay, in the message area, and tell me whether that statement is valid or not as per the reasoning in Shreya Singhal versus Union of India. Okay, just give me a moment.
this is the question in the chat box. Only the courts can decide the online posts as menacing or offensive as per the judgment in the Shreya Singhal case before the Supreme Court. True or false? Are you able to see the question? In the chat, please tell me yes or no. Okay, ठीक है, चलो. False, yes, okay, okay, false, false, false. All right. So I have two set of statements for true. I have two set of statements for false. So whosoever has stated true and whosoever has stated false, please choose. You can copy it, you can paste it. What is your reasoning? Tell me. What is the reasoning? It's a very simple passage. Okay, so I have given you two statements for true and I have given you two statements for false. Those who have stated true, tell me which statement is true, and those who have stated false, tell me why it is false. You can copy it and you can paste it. I think it is Google allows. Okay. Okay. Others? False A. Okay. Okay. So most of you have got this particular reasoning correct. Okay, that's wonderful. That's amazing. That because whatever is menacing and whatever is offensive could only be decided by the Supreme Court. Could only be decided by the central government, and that is why Supreme Court has stated that it is arbitrarily, excessively, and disproportionately invading the right of free speech. Okay, what are the parameters using which the menacing or offensive online posts can be determined? That was not there. So court's 2015 decision in Shreya Singhal versus Union of India was a landmark judicial pushback against state encroachment on freedom.
66A so that virtually any opinion on any subject would be covered by it. With standards constantly, the gap between the court system and the pile of sections is perhaps explained by political climate in which free speech, dissent, and legitimate criticism are seen as an exercise in bad faith, or wielded as weapons to arrest journalists and citizens for tweet or a slogan on a Facebook post. When a large body of progressive judgment by Constitutional Court has not prevented the blatant misuse, reluctant to give grant bail to the excusing in the face of the political class that does not stem from arrogating more powers to regulate the space of police marches to the truth of vendetta and even judicial legitimacy. Not the centers, not to the state is welcome, but regular monitoring is the only way to ensure that the law is implemented in letter and spirit. Okay. Even a large body of progressive judgments by constitutional courts has not prevented the blatant misuse of the sedition or come in way of courts' reluctance to grant bail to the accused. Okay. Now, Section 66A is a law that prevents sedition. Section 66A is a law that prevents sedition. Do you agree to this statement or not? अगर उसने अपने स्टेटमेंट में, अपने पोस्ट में, ऑनलाइन ट्वीट में, ऑनलाइन फेसबुक पोस्ट में उसने डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी बढ़ाने की कोशिश की है और उसको कहीं पब्लिश कर दिया है, तो सेक्शन 124A के अंदर भी FIR दर्ज होगी और सेक्शन 66A के अंदर भी FIR दर्ज होगी, यानी उस FIR में दोनों प्रोविजंस मेंशन्ड होंगे. भाई देखो, तुमने जब इस स्टेटमेंट को सीधे कह दिया कि सर इट्स फॉल्स, तो तुम ये क्यों अज्यूम कर लिए? वाई डिड यू अज्यूम दैट पैसेज में सेक्शन 66A की बात कर रहा है और इस स्टेटमेंट में सिडिशन की बात कर रहा है, तो वो अलग जा रहा है. वो सिडिशन का कॉन्सेप्ट 66A के साथ ही लेके चल रहा है. तो कॉन्टेक्स्ट समझिए. इट इज व्हाट ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड इन करेक्ट. सेक्शन 66A का मिसयूज पॉलिटिकल क्लाइमेट की वजह से हो रहा है. समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनके पास पुलिस होती है और स्टेट्स को सेंटर ने डायरेक्शन दिया है, यानी सेंटर ने कोई FIR, सेंटर के तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है वहाँ के स्टेट के पॉलिटिकल क्लाइमेट से अफेक्टेड होती है. तो सेक्शन 66A और सेक्शन 124A दोनों का ही मिसयूज हो रहा है. ठीक है, लेकिन उस केस में बेल नहीं मिल रही है जहां पे 124A भी दर्ज हुआ है. आपने अगर सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, ठीक है, लेकिन उस पोस्ट का कंटेंट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा होगा, इसीलिए सेक्शन 124A के अंदर उसको देखा जरूर जाएगा, क्योंकि सेक्शन 124A ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ मेंशन नहीं करता है, सिर्फ पब्लिश वर्ड यूज करता है. ठीक है, तो एज्यूम करेंगे कि सेक्शन 124A बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन पोस्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा. तो इस केस में आपको बेल नहीं मिल पा रही है. समझ में आया? इन द फेस ऑफ द पॉलिटिकल क्लास दैट डज नॉट श्रिंक फ्रॉम एरोगेटिंग मोर पावर्स टू रेगुलेट स्पीच, द पुलिस मार्चेस टू द ट्यून ऑफ वेंडेटा. समझ गए? एंड इवन जुडिशियल विजडम इज इग्नोर्ड. ऑथर ये कह रहा है कि सेक्शन 66A के अंदर अगर कोई पोस्ट डाला और उसको 66A के अंदर आपने दर्ज कर लिया, 124A भी लिख दिया, अब 66A भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है तो 124A का भी कोई कॉन्टेक्स्ट बनता नहीं है. ये ऑथर का ओपिनियन है, लेकिन सेक्शन 66A को यूज किया जा रहा है सिडिशियस कंटेंट डालने के लिए, और प्रिवेंट करने के लिए. आप अगेंस्ट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर प्रमोट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट कोई डिसअफेक्शन अगेंस्ट द हम यूनियन गवर्नमेंट ही प्रमोट कर सकते हैं क्या सिर्फ? आप एक बात बताइएगा, चलिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का ही रेपुटेशन है? ये जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली लिमिटेड टू यूनियन गवर्नमेंट, यानी सिडिशन सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? तो सिडिशन तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है, वही चीज आपसे कह रहा है. तो ये बारीकी पकड़िए, अब समझना शुरू करिए. जब भी पैसेज में सिडिशन वर्ड मेंशन किया है तो बेटा वो सिडिशन के बारे में बता रहा होगा और वो कॉन्टेक्स्ट में ही है पैसेज के. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है
ये क्वेश्चन तुमसे एग्जैक्टली ऐसा ही क्लैट कंसोर्शियम नहीं पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर वाली चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार 66A का मिसयूज जनरली कहाँ देखा जा रहा है, तो वो तुम लोग को पता है नहीं, इसलिए तुम लोग ने बोल दिया कि नहीं सेडिशन से रिलेटेड नहीं है वो चीज़. बट दैट्स नॉट अ वेरी मेजर मिस्टेक एज पर व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि बाकी क्वेश्चंस की रीजनिंग जो तुम लोग दे रहे हो वो सही दे रहे हो. अब उसमें एक आधे बच्चे हैं जिनका आंसर डिफर कर रहा है, तो आप प्लीज़ समझिएगा कि आप बेचैनी में पढ़ते हैं, है ना, आराम से पढ़िएगा. अब इस पैसेज को रीड करने की जो स्पीड होगी हमारी, क्योंकि ये आइडियल पैसेज है, इतना ही लंबी होता है आपका क्लैट में पैसेज, तो ये स्पीड होगी जिस तरीके से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. ओके, सो दिस विल बी द स्पीड. और आप एक पैसेज को पढ़ा आपने तेजी से, इसी पैसेज को आप दोबारा भी पढ़िए तेजी से. एक तरीका ये होता है पैसेज को पढ़ने का, ठीक है. इसको मैंने बहुत तेजी से पढ़ा और फिर दोबारा इस पैसेज में जाने की बजाय मैंने इसको फिर से तेजी से पढ़ा, सेकेंड टाइम स्पीड तेज हो जाती है. दूसरा तरीका ये होता है कि आप लाइन को पढ़ रहे हैं और बार बार लाइन को रिपीट कर रहे हैं. एक लाइन पूरी पढ़ी पहले फटाक से, फिर उसको स्टार्टिंग से पढ़ा. इससे आपको क्या होगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा. और ये करने में आपको 3 मिनट लग जाता है. ये सब करने में, इतना ऐसे रीड करने में आपको 3 मिनट लग जाता है. अब दिमाग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया कि यार सारा प्रिंसिपल कहाँ दिया हुआ है, पहले ही पैसेज में दिया हुआ है और थोड़ा सा बीच में यहाँ पे दिया हुआ है. और आखिरी का जो पैसेज है उसमें कोई लीगल प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, बल्कि एक जनरल ओपिनियन दिया हुआ है. तो ओपिनियन के ऊपर क्वेश्चन अगर आ रहा है, ओपिनियन के ऊपर क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद दोबारा एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड यू कॉम्प्रीहेंड, बट इट्स अबाउट हाउ फास्ट यू कॉम्प्रीहेंड. ठीक है, दैट्स एज सिंपल एज दैट. So you only have to see, you don't have to understand the entire passage, always remember this. You just have to understand the passage from where questions are there in legal. And this is why reading questions first and skimming the passage prima facie and then reading the questions always helps, always saves a lot of time. Everybody would be able to read it within 6 minutes, 5 minutes, but the best part is that if you are able to do it within 3.5 minutes, एडवांटेज होगा तुम्हारे पास. यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. सो वंडरफुल, यू पीपल डिड वेल. बस एक आखिरी का क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए था. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. Have we discussed the part 1 of current affairs? Have we discussed this part 1 of current affairs? I guess no. Okay, perfect. साथ साथ आप लिखते भी चलिएगा अपनी कॉपी. इफ़ यू हैव अ कॉपी ऑफ करंट अफेयर्स, दैट्स ऑलवेज सजेस्टेड. ठीक है, साथ साथ लिखते भी चलेंगे. सो दिस इज द लॉन्च ऑफ गर्भिणी GA2, गर्भिणी GA2 बाय IIT मद्रास. ओके, एंड ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद. ठीक है, फर्स्ट इंडिया स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which is able to determine the age of the fetus in a pregnant woman in the second and third trimesters precisely. All right. Now this is the part of Group of Advanced Research on Birth Outcomes DBT India Initiative Garbhini Program. So this is the full form. Group of Advanced Research on Birth Outcomes. Birth Outcomes. Okay. After this you have to see that what is the appropriate information that you are going to write, and you will find that from here we do not have any appropriate information as such. So in our notes copy, what are we going to write? We are only going to write this. Just please write what I am writing. Okay, Garbhini GA2, circle it.
only write here IIT Madras and then THSTI Faridabad. AI led model, age of fetus, ठीक है, and the full form is Group for Advanced Research on Birth Outcomes, DBT India Initiative Program. ठीक है, it is the first India specific AI and that's it. IIT Madras, THSTI Faridabad, AI led model determines the age of the fetus, Group of Advanced Research on Birth Outcome, DBT India Initiative. This is Garbhani GA2. Notes completed. Let's move to the next part. First manhole cleaning robot of India. This is Homosep Atom developed by Solinas startup. As is simple, one liner है ये, आप इसको बस इतना ही लिख लीजिए. First manhole cleaning robot of India, Homosep Atom, which is developed by Solinas startup. Okay, now you will find that what is Solinas? It's a startup of IIT Madras, and this particular startup is creating robots for water sewer pipelines, which is aided by government Department of Science and Tech. ठीक है, so what is important here is to understand that this is the first septic tank manhole cleaning robot. Why are you needing a robot to clean a manhole? ये गटर साफ करने के लिए तुम्हें रोबोट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि manhole mining, scavenging, ठीक है, cleaning, ये सब क्या है? बैंड एक्टिविटीज़ हैं और इसमें ये इलीगल भी होती हैं और इसमें आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है अगर आपने मैनुअली मैनुअल माइनिंग कराई तो. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर कह सकते हैं डायरेक्शंस इशू किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो अब क्या है, इस प्रॉब्लम को हमें ख़त्म करना है. तो IIT मद्रास क्या कर रहा है? रोबोट बना रहा है. उसका नाम क्या है? होमोसेप्टिक. सेप्टिक टैंक से सेप, होमो मतलब आदमी, एटम. ठीक है, सोलिनास ब्रैकेट में क्या लिखा? IIT मद्रास. दैट्स इट फॉर दिस नोट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ऑपरेशन अमृत. Operation Amrit is of which state? Kerala. And what is the purpose? To check antibiotics abuse in the state. Antimicrobial resistance intervention for total health is the full form. And rest everything is a good to read. So pharmacies will have to store correct details of antibiotics they sell and all of this. So what are you going to write in your copy? Please write this. ठीक है, दैट्स इट. इसके अलावा आपको कुछ, अरे यार, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इतना ही लिखिए बस. आपको बेसिकली रिवीजन में सिर्फ ये वाले जो 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो बाकी चीज़ें आप एग्ज़ाम में कर लेंगे, है ना. और इसमें देखेंगे आपकी सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस की दम पे ही आप कर सकते हैं. अब क्या है एंटीबायोटिक का अब्यूज़ क्या है वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं. अब देखो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ोगे तो ये एडिटोरियल से है, ठीक है, और यही चीज़ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में भी थी एक बार. और तुमको मैंने ई एक्सप्लेन दिया है फरवरी के न्यूज़पेपर्स में जो ई एक्सप्लेन्ड है उसमें भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये वाली जो इसके ऊपर एक्सप्लेन्ड आ चुका है. तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता रहेगा. तो नंदलेस आपका सोर्स क्या है?
आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके लिए देखिए, अगर आप अखबार डेली पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑन अ डेली बेसिस, तो ये जो करंट अफेयर्स का जो आपको इस तरह से मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3, मार्च 4 मिलेगा, वो आपके लिए बहुत फास्ट रिवीजन का काम करेगा और आपकी नोट मेकिंग उससे हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइन ही मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ कि बेसिक नोट्स आपके मिल जाएं, आपका रिवीजन भी हो जाए। कोशिश करिए कि आप अखबार डेली पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पूरा जो पर्टिकुलर टारगेट है वो बताया है कि WHO ने कहा है कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि अगर आपको इस तरीके से आपने एंटीबायोटिक्स का अब्यूज़ करते रहे, मतलब बात पे एंटीबायोटिक खा लेना और एंटीबायोटिक के डोज को कंप्लीट ना करना, तो 2050 तक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू बी अ साइलेंट पैंडमिक, ठीक है। तो ये नोट आप कर सकते हैं, पर ये ऐसा इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने पढ़ लिया तो आप भूलेंगे नहीं, तो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है कि यार एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस साइलेंट पैंडमिक बन जाएगा, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। अब मेन इशू क्या है? टू कंप्लीटली स्टॉप द सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस बाय द एंड ऑफ 2024, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में है हंगरी अप्रूव्स द एक्सेशन ऑफ स्वीडन इन नेटो। नाउ फर्स्ट विल ट्राई टू लुक एट द मैप। सो मैप है हमारे पास, ओके। Sweden clears final hurdle to join NATO. Sweden will be the 32nd country to join NATO, right? And 31st is Finland. Okay, 32nd is Sweden. Hungary has held a parliamentary vote to approve the move. Now इससे एक चीज़ हमें क्या पता चलती है? इससे ये पता चलती है कि all member countries of NATO must approve the membership. Hungary must be a member of NATO, and that is why it was not approving the addition of Sweden. So first things, look at this dark blue. These are the 12 founder countries you will find. Okay, 12 founder countries in which you will find Norway to be there, UK to be there, France will be there. All right, Italy would be there, Montenegro would be there, and Portugal is there. These are the founding countries, okay, Denmark and Netherlands and Belgium. So these are the founding countries that you will find to be there with respect to this. Now please understand the two countries that you are adding, okay, the two countries that you are adding is from the Nordic region. Which region is this? This region is called as the Nordic region, the region around North Sea, okay, the region around North Sea. And Norway was already the part of NATO. तो ये नॉर्वे के बारे में खास बात क्या है, आप इसको चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने सही बताया है कि नहीं, ठीक है। नॉर्वे नेटो का फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, नेटो का वन ऑफ द फाउंडर है, लेकिन नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा और आप इस चीज़ को चेक करिएगा। टेल मी इफ दैट इज ट्रू और नॉट, है ना। लेकिन इन तीन कंट्रीज़ को हम नॉर्डिक कंट्रीज़ बुलाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि नॉर्डिक कंट्रीज़ हम किन को बुलाते हैं। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए इस मैप में, बाल्टिक सी। क्या ध्यान देना चाहिए? बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के पास में ही अब आप देखेंगे ये रशिया है, तो रशिया के पास दिस इज़ द सी वे, है ना। रशिया के पास अगर रशिया को एग्जिट चाहिए तो रशिया के पास जो इकलौता रास्ता बचता है समुंदर का वो ये वाला बचता है कि नहीं? यही सी है। तो ये कहाँ से निकलता है? बाल्टिक सी से निकल रहा है। और यहाँ पे जो सिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो सिटी है, किसी को पता है यहाँ पे कौन सी सिटी है रशिया की? रशिया की कौन सी सिटी है इस जगह पे? कालिनिनग्राड इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बेटा। सिटी कालिनिनग्राड नहीं है, ये है कालिनिनग्राड, ये, ठीक है अर्पित। जो मैंने पॉइंट नंबर 2 मार्क किया है वो है कालिनिनग्राड, ये है सेंट पीटर्सबर्ग, है ना। कौन सी सिटी है? सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग ही एक ऐसी सिटी है जो आप कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ही थोड़े से आगे पे यू विल फाइंड इट इज़ मॉस्को टू बी देयर,
ठीक है, तो एक पॉइंट कहने का आशा ये है कि आप ये समझिए कि यार बाल्टिक सी के पास ही रशिया के पास इतना पतला सा नैरो स्ट्रेच बचता है। नैरो स्ट्रेच के बाद तुम देखो अभी क्या था कि ये वाली कंट्री जो थी फिनलैंड, जो ये कंट्री थी, है ना, फिनलैंड जो कंट्री थी और स्वीडन जैसे अभी मेंबर बन गया है, तुम्हें भी ये भी पता है कि फिनलैंड भी बन गया है, ये कंट्री नेटो के मेंबर्स नहीं थे, तो उसको जो थ्रेट महसूस होता था वो सिर्फ इस डायरेक्शन से महसूस होता था, यानी नज़र रख रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। और देखेंगे कि अगर रशिया को आपको कोई भी न्यूक्लियर चीज़ें भेजनी होती है वहीं होंगी तो वो इस रास्ते से नहीं भेजता था। रशिया ने आपको न्यूक्लियर सप्लाई कभी इस रास्ते से नहीं की, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की ये कंट्रीज़ और नेटो की ये कंट्रीज़ को शक हो जाएगा या उनको पता चल जाएगा। ये भी कॉमन सेंस वाली ही बात है। लेकिन आप देखेंगे कि अब दोनों तरफ से उसको नेटो घेर रहा है, तो कहीं ना कहीं रशिया का जो समुद्री एग्जिट है वो नेटो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब इसके बाद तीसरी चीज़ आपको इसमें जो इसी इंफोग्राफिक में देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि कितने वेव ऑफ एक्सपेंशन हुए हैं, कितने वेव ऑफ एक्सपेंशन हुए हैं नेटो में, ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी चाहिए। तो फाउंडिंग मेंबर्स हुए 1949 में, उसके बाद पहला वेव ऑफ एक्सपेंशन, दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, 1950 से 2000 में, 2000 से 2023 में और 2024 में। तो एक तरीके से 3 वेव ऑफ एक्सपेंशन इसको देखने को मिले हैं। और जिसमें से सबसे पहले 2 मेंबर्स जो हैं 1952 में ही सबसे पहले 2 मेंबर्स 12 + 2 करके 14 कर दिए थे। इट वाज ग्रीस एंड टर्की, ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और टोटल मेंबर्स अभी कितने हो गए, 32 हो गए। उसके बाद यू विल फाइंड, देखो 1950 से यानी वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म हो जाने के बाद, जब 1950 से 2000 का दौर है, तो उसमें स्पेन ने ज्वाइन कर लिया, उसमें टर्की ने ज्वाइन कर लिया, हंगरी ने ज्वाइन कर लिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, दीज कंट्रीज केम एट दिस स्टेज, ठीक है। यू विल फाइंड दैट लग्जमबर्ग इज सच अ स्मॉल कंट्री, ठीक है, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, दीज आर द कंट्रीज विच विज दिस एक्सपेंशन वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ टर्की पर से। अगेन यू विल फाइंड द इंटायर स्ट्रेच अराउंड मेडिटेरेनियन सी। यू सी मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ नेटो है, समझिएगा बात को, मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ नेटो है, बाल्टिक सी के चारों तरफ नेटो है, नॉर्थ सी के चारों तरफ नेटो है, इंग्लिश चैनल के चारों तरफ नेटो है। तो नेटो ने एक तरीके से यूरोपियन इकोनॉमीज को पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है? यूरोपियन इकोनॉमीज को पकड़ रखा है। यूरोपियन इकोनॉमीज की सिक्योरिटी के लिए नेटो अपने को दिखाई दे रहा है, यूरोप की सिक्योरिटी के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें इनका की पार्टनर कौन है अक्रॉस द पैसिफिक? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनका की पार्टनर है। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूएसए की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मिलिट्री है, उसके बाद टर्की की लार्जेस्ट मिलिट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री नेटो में है टर्की के पास। तो टर्की इज अ वेरी इंडिस्पेंसिबल पार्टनर ऑफ नेटो व्हेन इट कम्स टू द, यू कैन से, लैंड फोर्सेस, ओके। नेवल पावर उतनी भले ही स्ट्रांग ना हो टर्की की, बट उसके पास आर्मी बहुत बड़ी है ना। और आपको पता है कि टर्की ऑटोमन टर्की है, तो आर्मी पे तो फोकस था। अभी क्या है, रशिया ये कहता है कि यार तुमने ऑलमोस्ट सारी सी जो है वो देख रखी है। अब रशिया के पास अगर आप जोग्राफिकली देखें तो निकलने का उसके पास एक दूसरा रास्ता है, सी ऑफ मरमरा के पास से होते हुए वो ये वाले रास्ते से भी निकल सकता है, और फिर नीचे से क्या पकड़ लेगा, अफ्रीका के पास से सुएज कैनाल पकड़ के इधर आपके पास आ जाएगा। तो रशिया के पास ये दूसरा रास्ता है, और वो यूजुअली ब्लैक सी वाला रूट ही प्रेफर करता है। यूजुअली वो ब्लैक सी वाला जो रूट है रशिया के लिए, वो वही रूट प्रेफर करता है। लेकिन देखो टर्की, जरा आप इमेजिन करिए टर्की का यहाँ पे क्या पोजीशन है, कि टर्की के पास, जैसे आपके पास लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और आपके पास अंडमान निकोबार है, तो टर्की के पास भी जब आप देखेंगे ये वाला रीजन, तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ यार, टर्की के पास भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट होके ब्लैक सी को क्या कर सकता है, नज़र पे रख सकता है। और उसके लिए दिक्कत कब खड़ी होती है? उसके लिए दिक्कत तब खड़ी होती है जब ग्रीस के साथ उसका लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चालू हो जाता है ना। जब ग्रीस के साथ उसका लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चालू हो जाता है, और इसी वजह से ये आइलैंड इलाके जो हैं ये सब क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं दोनों के बीच में। ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप टर्की, ग्रीस को अगर मेंबर बनाता है यूरोप, जाहिर सी बात है नेटो बनाता, तो टर्की को नहीं बनाते तो बड़ी दिक्कत होती। लेकिन टर्की और रशिया एक तरीके से अलाय भी हैं,
ठीक है, इनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशन जो है, इकोनॉमी जो है वो अच्छी है टर्की और रशिया के बीच में। एक तरह का ट्रस्ट वाला रिश्ता है दोनों देशों के बीच में, एक तरह का विश्वास वाला रिश्ता है दोनों देशों के बीच में। तो दोनों रशिया और टर्की जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट कभी नहीं आते, बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो इसीलिए रशिया, क्योंकि उसको पता है कि यार ये वाला इलाका तो कंप्लीटली मेरे लिए क्या है, हॉस्टाइल है, ये वाला इलाका मेरे लिए कंप्लीटली हॉस्टाइल है। अब तुम एक बात समझना, मैं तुमको बहुत साफ बताता हूँ कि हंगरी में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, हंगरी में कुछ ब्लास्ट हुए थे, कुछ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे और उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग थे, ठीक है, और वो हंगरी की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बाद में जाके वो क्या हो गए थे, स्वीडन में जाके पनाह ले लिया था, दे टुक रेफ्यूज इन स्वीडन। तो हंगरी का यही कहना था कि अगर हम स्वीडन को मेंबर बना रहे हैं, स्वीडन को हम मेंबर बना रहे हैं, तो उन सभी प्रिजनर्स को हमें रिलीज कर दीजिए, हमें सौंप दीजिए, तो हम आपको मेंबर बना देंगे। अब इन्होंने क्या डिस्कशन किया है, क्या इंटरनली इनकी बात हुई है, इसके बारे में मीडिया में हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रशिया और टर्की की अगर दोस्ती है, और रशिया ने हमेशा जब भी कभी इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे कुरान को डेसिक्रेट किया गया है, मॉस्क में कोई भी इलीगल एक्टिविटी हुई है, प्रोटेस्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, और वो सब इन सब नॉर्डिक कंट्रीज में होता रहता है, नॉर्डिक कंट्रीज में ये होता रहता है, यूरोपियन कंट्रीज में होता रहता है। तो रशिया सेंटिमेंटली किसके प्रति रहता है, मुस्लिम पॉपुलेशन के टुवर्ड्स रहता है, उनके बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेंटिमेंटली पॉलिटिक्स करता है, पॉलिटिक्स को यूज करता है। लेकिन इस केस में आपको ये सब बिल्कुल समझ में आएगा कि यार ये सारा कुछ इंटरप्ले कहीं ना कहीं रशिया को ब्लैक सी में एक सेफ एग्जिट दे देता है। और उसके बाद अभी क्या हुआ, दिक्कत ये हो गई दोस्त कि देखो यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, ये नहीं है, ये छोटे मोटे देश हैं, ठीक है, ये छोटे मोटे देश हैं, ये क्या ही कर लेंगे उसका, जब टर्की जैसा आर्मी रशिया के शिप्स को नहीं रोकता है, तो ये छोटे मोटे देश क्या ही कर लेंगे, है ना। लेकिन अब जब यूक्रेन इतनी बड़ी ताकत है जिसके पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, अगर ये भी आ गया तो फिर देखिए रशिया के पास ना इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उसको फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा, और अगेन उसका जो एग्जिट है वो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेटो को बढ़ाते बढ़ाते रशिया को जोग्राफिकली लिमिट करने का जुगाड़ है, मेंबरशिप बढ़ाना, ऐसा रशिया कहता है। और इसीलिए रशिया को क्या है, तकलीफ होती है, ठीक है, और वो कहता है कि नेटो को रोक दो ना भाई, हम तो एक्सपैंड हो नहीं रहे, तुम नेटो को क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब इसके बीच में आपको ये कंट्रीज़ को ज़रूर नोट कर लेना चाहिए जो कि मेंबर्स नहीं हैं, ठीक है, जो कि मेंबर्स नहीं हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे कि अरे यार कुछ ऐसी हॉस्टाइल रीजन्स हैं, कुछ ऐसे बफर स्टेट्स हैं, देयर आर सर्टेन बफर स्टेट्स जो कि रशिया का है, रशिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नेटो को ज्वाइन नहीं करा, इसका मतलब क्या है, रशिया के टुवर्ड्स हैं। तो ये चीज़ों को अब आप करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक देखिए इंटरेस्टिंग किस तरीके से नेटो एक्सपैंड कर रहा है, ये सिर्फ मैप को देख के हम एक पैटर्न दिमाग में अब ज़रूर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि जो स्वीडन है वो 32nd मेंबर की तरह है। तो नेटो का अगेन अगर आपको नोट्स बनाना हो तो वही बात है, कितनी बार नोट्स बनाओगे नेटो का, वो तो 1000 बार बना चुके हो, ठीक है। नेटो का क्या है, 1949 कौन सी ट्रीटी थी, वॉशिंगटन ट्रीटी थी, वॉशिंगटन ट्रीटी थी, ठीक है। नेटो को मिलिट्री पावर कौन बनाता है, नेटो मिलिट्री पावर क्यों बनता है, आर्टिकल 5 की वजह से बन जाता है, सारी मिलिट्रीज एक साथ आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप ऐड करेंगे ऐसे 32nd मेंबर कौन है, 32nd मेंबर स्वीडन है, जिसकी मेंबरशिप पे ब्लॉकेट कौन लगा रहा था, मेंबरशिप पे ब्लॉकेट लगा रहे थे दो कंट्रीज, हंगरी और दूसरा था टर्की। फिर 31st मेंबर कौन है, ठीक है, ऐसे आपने लिख लिया। फिर आप लिख लें यहाँ पे जेंस स्टोल्टेनबर्ग, फिर लिख लें यहाँ पे ब्रुसेल्स बेल्जियम, उसके बाद अब स्वीडन के कंटेक्स्ट में जो भी बात आएगी वो हम यहाँ पे नोट करेंगे, देखते हैं। सो इट्स अ ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस, ओके। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर
उल्फ क्रिस्टर्सन, सो स्वीडन का पीएम का नाम आ गया यहाँ पे, उल्फ क्रिस्टी, ठीक है, उल्फ क्रिस्टी, दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर क्रिस्टर्सन इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है. Next, US Secretary of State Antony Blinken presided a ceremony in which Sweden's instrument of accession to the alliance was officially deposited at the state. जरा आप देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. NATO alliance is now stronger, okay, and that is will make the United States or allies even stronger. That is what you need to read here. बाकी उसमें लिखा है स्वीडन अलॉन्ग विद फिनलैंड विच जॉइन नेटो लास्ट ईयर बोथ अबैंडन लॉन्ग स्टैंडिंग मिलिट्री न्यूट्रलिटी दैट वाज अ हॉलमार्क ऑफ द नॉर्डिक स्टेट कोल्ड वॉर फॉरेन पॉलिसी आफ्टर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन इन 2022. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I was telling you that these countries are what? These are Nordic countries. And what was the stand of Nordic countries? Military neutrality. They will neither join Russia-led CSTO, they will neither join UK led NATO, यूरोपियन यूनियन लेड नेटो, ठीक है. ये वाला पॉइंट हमने नोट कर लिया है. अब देखिए यहाँ पे कुछ नाम इंपॉर्टेंट आ रहे हैं. लिखा हुआ है कि हंगरी के जो प्रेसिडेंट हैं विक्टर ओरबान, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विक्टर ओरबान. अभी फिलहाल नेटो का इतना ही जो नोट्स है इसको करिए, उसके बाद आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. तुम लोग को कैसे हटाते हैं यहाँ से, इसको करेंगे पिन, नहीं, ओके, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. UAE हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द FATF's ग्रे लिस्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. जरा 2 सेकंड के अंदर अंदर, आई मीन 2 सेकंड कह रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर इसको फटाक से रीड करिए. डूइंग इट. अब देखिए हमने जब रीड किया तो जनरली हमें कॉन्टेक्स्ट क्या मिला यहाँ पे कि UAE क्या है. UAE फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है, दैट ग्रुप कंट्रीज फ्रॉम US टू चाइना. तो ये नोट करने वाली बात है. FATF का पार्ट क्वेश्चन में पूछ दे अगर United States of America is a part of FATF but China is not, statement is correct with respect to passage, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, US और चाइना दोनों इसका पार्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है. उन्होंने UAE को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है. अब देखिए FATF के अंदर एक चीज़ याद रखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है. जब कोई कंट्री का नाम किसी लिस्ट में आ जाए, लिस्ट A, लिस्ट B, तो एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट, जिसमें अभी रिसेंटली म्यांमार को ऐड किया गया है, ठीक है. तो ग्रे लिस्ट क्या होती है, इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन अंडर, इस लिस्ट को कहते हैं जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग कहते हैं. यानी कि तुम पे हमको शक है और हम तुम्हारी इकोनॉमी को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे. और ब्लैक लिस्ट जो होती है वो होती है बैंड इकोनॉमीज. अब ब्लैक लिस्ट में आ जाने का मतलब क्या है, नो फंडिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, IMF. आपको यहां से क्या मिलेगा, किसी तरह का फंडिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे. तो नॉर्थ कोरिया भी है इसमें, ठीक है. अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता जाता रहता है, उसकी आदत है, फितरत है. तो UAE को कहां से रिमूव किया गया है, ग्रे लिस्ट से. UAE को ग्रे लिस्ट से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. उसके बाद दूसरी चीज आप याद रखिए, अगर कोई रीजन पूछे कि UAE को क्यों ऐड किया था, तो आपको अब यहाँ पे रीजनिंग समझ में आएगी. एक्चुअली क्या है, UAE जो है बेल्जियम को टेक ओवर कर गया है, जहाँ पे डायमंड्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है. तो डायमंड ट्रेडिंग में 2 देश आते हैं, विच इज बेल्जियम जो कि अब 2nd नंबर पे हो गया है, और दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. अब जो डायमंड की ट्रेडिंग होती है तो डॉलर आता है कहाँ पे, UAE के अंदर, और इस डॉलर को फिर वो यूज़ कर सकता है टूरिज्म या अदर इंडस्ट्री बनाने में. तो अब क्योंकि UAE अगर ग्रे लिस्ट के अंदर लगातार रहेगा, आप समझिएगा बात को, तो इन्वेस्टर्स हैं या बायर्स हैं,
they'll try to avoid buying from any precious thing, buying from United Arab Emirates, and this will impact the economy of United Arab Emirates. तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है ना, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, राइट, विच उनके भाई जो भी पूरा मैटर संभाल रहे थे. तो ये क्वेश्चन फॉरेन मिनिस्टर का नाम किसी कंट्री का तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है. मोहम्मद बिन ये नाहयान जो है याद रखिएगा, बस मोहम्मद बिन और ये सब आपको याद रखने का इतना ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो नाम अपने को याद रहे ना रहे किसको पता है. ऑप्शन में नाहयान रहेगा तो हम मार्क कर लेंगे, ठीक है. अच्छा, गल्फ कंट्रीज जो हैं यू विल फाइंड हियर दैट दे आर ट्राइंग टू डेवलप द नॉन ऑयल सेक्टर्स, दे आर ट्राइंग टू डेवलप द नॉन ऑयल सेक्टर्स. अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज लुकिंग अवे फ्रॉम ऑयल, राइट. अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तेल के अगेंस्ट देख रहा है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो ईरान का साथ देगा? वो ईरान का साथ बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है. और यूएई से सीख रहा है अभी फिलहाल सऊदी अरेबिया. अभी कुछ समय के बाद आपको सुनने में मिलेगा कि सऊदी अरेबिया ने ईरान के ऊपर तगड़ा सैंक्शन लगाया है या अटैक कर दिया है. फिर यूएई अब एफएटीएफ के ऊपर ये चीज़ याद रखिएगा, कैसी बॉडी है. नेचर ऑफ बॉडी इस क्लैट में बराबर से पूछी जाती है. इस बार G20 आया, उसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं नेचर ऑफ द बॉडी पे. इंटर गवर्नमेंटल है, कैसी है, ठीक है. तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट लेवल का पार्टिसिपेशन है. G20 इंटर गवर्नमेंटल नहीं हो सकती, ठीक है. G20 इंटर गवर्नमेंटल है बट इनफॉर्मल है. और ये एफएटीएफ क्या है? इंटर गवर्नमेंटल है लेकिन फॉर्मल है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट कर रही है टू प्रिवेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स. स्टैब्लिश्ड इन 1989, जुलाई 1989, G7 समिट इन पेरिस. ये याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है. तो एफएटीएफ के ऊपर आप बहुत सिंपल सा नोट भी बना सकते हैं. 1989 पेरिस G7 समिट, ठीक है. मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है और टेरर फाइनेंसिंग को. मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फाइनेंसिंग को, इसके अंदर दो लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है. ग्रे लिस्ट से यूएई को रिमूव किया गया है और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन अल नाहयान, ठीक है. एफएटीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो चीफ हैं, टी राजा कुमार. इंडिया जो है 2010 से इसका पार्ट है. इंडिया जो है इसका 2010 से पार्ट है. 37 इसके क्या हैं? मेंबर्स हैं. 37 मेंबर्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें जीसीसी आपको दिखाई देगा और यूरोपियन कमीशन आपको दिखाई देगा. तो जीसीसी और यूरोपियन कमीशन के ऊपर आप अलग से नोट बना सकते हैं, ठीक है. अब इंडिया कहाँ से रिप्रेजेंट करता है ये सब आपको देखने का ज़रूरत नहीं है. इसका हेडक्वार्टर क्या है? इज लोकेटेड एट द OECD, हेडक्वार्टर इज इन पेरिस. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंट्रीज, ठीक है. ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट आपको ऑलरेडी बता दिया है. नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, NCCTs, ये नाम भी याद कर लेंगे, ठीक है. नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज जो कोऑपरेशन नहीं दे रही हैं. ईरान, म्यांमार एंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर अंडर हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन और ब्लैक लिस्ट. ठीक है. DPRK इज नथिंग बट नॉर्थ कोरिया. म्यांमार को ऐड किया गया है और ईरान, ठीक है. ये वाले नेम जरूर याद रखिएगा, ये क्योंकि गिनती के हैं. ग्रे लिस्ट में थोड़े नाम थोड़ा ज़्यादा है, पर ब्लैक लिस्ट में क्या है? गिनती के नंबर हैं. तो आप ये चीज़ को यहाँ पे ऐड करेंगे. जैसे ब्लैक लिस्ट लिखा है यहाँ पे, तो इसमें आप 3 कंट्रीज ऐड कर दीजिए. ईरान है ना, और म्यांमार, DPRK, दैट इज नॉर्थ कोरिया, ठीक है. तो अगर आप देखिए
आप इसको ही नोट्स की तरह एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही छाप लीजिए अपनी कॉपी में, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया आपका इस पूरे उसका समरी, एक पेज का क्विक रिवीजन। ठीक, चलिए 37 कंट्रीज़ हैं, ये तो याद ही रहेगा, है ना। ये 2 रीजनल बॉडीज़ हैं, ये भी अपने को क्या रहेगा आज के बाद तो याद ही रहेगा। ठीक, बाकी सारी चीज़ें रीड करने वाली थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रीडिंग मटेरियल है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रीडिंग रिसोर्स। ओके, ये याद रखिएगा। 55th रेगुलर सेशन ऑफ UNHRC हुआ है जेनेवा में, ये आपको याद रखना है। 55th रेगुलर मीटिंग UNHRC, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये और ये क्या है, देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक UNHRC है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसकी क्या हुई है 55th मीटिंग हुई है। क्या हुई है 55th मीटिंग हुई है ना। कहाँ पे, जेनेवा में। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो इंडिया की तरफ से अनुपमा सिंह गई हैं। अनुपमा सिंह जो कि क्या है हमारा परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अनुपमा सिंह। ओके, शी इज़ द फर्स्ट सेक्रेटरी, मतलब IFS ऑफिसर होंगी, ऑब्वियसली IFS ऑफिसर होंगी, राइट। 55th मीटिंग हुई, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, इसलिए इनका क्लैट कंसोर्शियम फुल फॉर्म पूछता है तो UNHRC में लास्ट में काउंसिल है ना कि कमीशन, और UNHCR का C क्या है, इट्स नॉट काउंसिल बट इट्स कमीशन, और ये रेफ्यूजीज के बारे में है। ठीक है, जैसे ही अगेन आप बात करेंगे तो आप एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी हाल फिलहाल भी सुनते होंगे, यूनाइटेड नेशन RWA। हम लोग ने जब जनवरी में करंट अफेयर्स पढ़ा था तो हमने इस बॉडी के बारे में खूब सारी हेडलाइंस पढ़ी थी और इसको कवर भी किया था कि ये 1949 में बनाई गई है और इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। ठीक है, ये किसके लिए काम कर रहा है, पैलेस्टीन के लिए, पैलेस्टीन पीस। और अभी कुछ दिन पहले के न्यूज़पेपर में था कि इसने $267 मिलियन का एड पैकेज दिया है गाजा में। आई डोंट नो यार, आज का पेपर हाईलाइट किया था मैंने, तुम लोग से शेयर नहीं किया, बट हमास ने पीस ट्रूस एक्सेप्ट कर लिए हैं इजिप्ट के द्वारा और कतर के द्वारा जो बोले गए थे। अच्छा, इसके जो चीफ हैं या हेड हैं उनका नाम है फिलिपिन लाज़ारिनी। ठीक है, फिलिपिन लाज़ारिनी। तो ये भी आप अपनी नोट्स कॉपी में प्लीज़ इस बॉडी के बारे में भी लिख लीजिएगा, है ना। प्लीज़ राइट अबाउट दिस। चलिए, ये वाले में क्या हुआ है, इन अ स्ट्रॉन्ग रिटॉर्ट टू डेड ट्रैक पाकिस्तान आफ्टर रेज द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द UNHRC, India said it cannot pay any attention to a country which is soaked in red due to the bloodshed from terrorism and its sponsors around the world. Firstly, we regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on internal matters in the future. Please remember and please understand this part. This is very, very important. India exercised the right of reply to respond to Turkey and Pakistan after the two countries made references to Kashmir in their statements at the high-level meeting. Now you will again find that there is an ongoing building up synergy between Turkey and Pakistan. There is an ongoing growing synergy between Turkey
and Pakistan with respect to Kashmir. And then what you do, you conduct a Raisina dialogue. इंडिया क्या करता है फिर, एक रायसीना डायलॉग कंडक्ट करता है. इंडिया रायसीना डायलॉग, 9th रायसीना डायलॉग कंडक्ट करता है, और फिर उसमें हम इनवाइट करते हैं किसको, वी इनवाइट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस, और उनका नाम क्या है, किरियाकोस मित्सोताकी. क्यों? क्योंकि देखिए टर्की और ग्रीस के बीच में, दोनों के बीच में एक मामला है जो कि विवादित है, साइप्रस की जो कंडीशन है वही कश्मीर की कंडीशन है. तो टर्की अगर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का साथ देगा तो हम भी दुनिया को इंडिकेट करेंगे कि हम वी आर बैंकिंग ऑन ग्रीस. पर प्रॉब्लम क्या है ना, ये प्रॉब्लम तब आ जाती है क्योंकि हम पॉलिटिकल वेपन को यूज़ कर रहे हैं, एक तरीके से इन कंट्रीज़ को परसुएट कर रहे हैं, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्योंकि दोनों नेटो का हिस्सा हैं. ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको दिखाई देगी. तो ये रीड करने वाला है, इट्स अ रीड, गुड रीड, प्लीज़ रीड एंड अंडरस्टैंड. तो ये लास्ट वाला आर्टिकल हो गया हमारा क्लियर. ठीक, अब देखिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है. वॉल्कर टर्क, हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी करी थी कि इनका रिलीजन क्या है. ठीक है, इनका रिलीजन क्या है, हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी करी थी. अगर आपको याद हो तो हमारे सेशन की पहली रिसर्च थी वो, कि वॉल्कर टर्क एक्चुअली क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है, इनका रिलीजन कैसे पता करेंगे, है ना. उसके बाद तो फिर हमने CA ही करा लिया आपसे. ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन लॉयर हैं, इज़ अ करंट UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. ओके, यानी कि UNHRC के चीफ हैं. ठीक है, और ह्यूमन राइट्स कमिश्नर बोलेंगे इनको, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, है ना. इट वॉज established in 2006 when United Nations was facing some reforms. Okay, it replaced the United Nations Commission on Human Rights, UNCHR. UNCHR बन गया UNHRC, बट ये UNHCR नहीं है, याद रखिएगा ये. ठीक है, members elected by UNGA are for a 3-year term with a maximum of 2 consecutive terms. ये आपको स्टेटमेंट में बस इतना याद रखना है. ठीक है, it meets 3 times a year to examine human rights violation worldwide. Resolutions are not legally binding but they only carry moral authority. This statement for you is important कि कोई लीगल बाइंडिंग अथॉरिटी इनका नहीं होता है, कोई लीगली बाइंडिंग जजमेंट इनका नहीं होता है, कोई भी डिसीजन इनका हमको मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉरल अथॉरिटी है. अरे मॉरल अथॉरिटी की कौन सुनता है, कोई सुनता है क्या? तुम माँ बाप की सुनते हो? नहीं सुनते हो ना, बस बात खत्म. Ambassador Omar Zainbar has been the permanent representative of Morocco to the United Nations Office and the International Organization in Geneva and the President of UNHRC 55th session Omar Zainbar. तो हमने क्या लिखा है UNHRC का, जहाँ पे नोट लिखा है, कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, यहाँ लिखा है. ठीक है, इसकी 55th मीटिंग का और जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट इज ओमार. 55th मीटिंग की जो प्रेसिडेंट है ओमार ज़नाइबर, ये आप लिख लीजिएगा. कहाँ से हैं? मोरक्को से. प्लीज़ नोट दिस डाउन. ऐसे ही अपने UNHRC के शॉर्ट नोट्स को बना लें. ठीक है, डू यू वांट मी टू मेक इट? इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, चीफ अलग है और प्रेसिडेंट अलग है. प्रेसिडेंट सिर्फ एक मीटिंग के लिए होता है, 55th मीटिंग, और चीफ का नाम अलग है, ये याद रखिएगा. ठीक है, वेरी वेरी मेमोरेबल फेस है ना, आसानी से याद रखने वाला चेहरा है ये, तो भूलिएगा मत. ठीक है, जॉनी वेंट अ लिटिल सीरियस हियर. हाँ, सॉरी, आगे बढ़ते हैं. एक्सपर्ट्स अरे यार, एक्सपर्ट्स रिपोर्ट निकारागुआ सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन टू UN काउंसिल. निकारागुआ का सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन टू UN काउंसिल है. ये भी देखिए रीड मटेरियल है, इसको भी रीड करेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है कि निकारागुआ जो है उसके प्रेसिडेंट है डैनियल ऑर्टेगा. ड्रिवन बाय अ डिजायर टू स्क्वेल्च क्रिटिकल वॉइसेस, डैनियल ऑर्टेगा और उनका जो भी पॉलिटिकल पूरा
असेंबली है, पूरी पॉलिटिकल टीम है, राइट, दे आर कमिटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन विच कैन बी रिगार्डेड एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. दैट इज व्हाट द यूनाइटेड नेशंस हैज रिसेंटली रूल्ड. एंड अगेन यू विल फाइंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ऑब्जर्वेशन है, तो इट इज नॉट बाइंडिंग. इनका कोई भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, राइट. मिस्टर ऑर्टेगा, हिज वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइफ रोजारिया मुरिलो and other high level officials should be held accountable. They are trying to dismantle active opposition efforts. They are also trying to eliminate critical voices and dissuade in the long term any new organization initiative of social mobilization. I think next target इसका कहीं UNHRC का इंडिया ना हो. Sorry ज़्यादा डार्क हो गया ये. The body is an independent group with a mandate from HRC, right? To investigate abuses committed in the Central American countries since 2018. और वहीं निकारागुआ में क्या चल रहा है? Former Marxist firebrand sanctioned by the US has governed Nicaragua since 2007, winning 3 successive re-elections and tightening his grip on key state institutions. He and his wife now have a total control over the judicial branch, according to the report. Now this is the concern. As you can find that politics now controls the courts there. ठीक है, नो फंडामेंटल राइट्स, नो रिकग्निशन ऑफ राइट्स. Managua views the 2018 protests as a part of an attempt to coup promoted by Washington and claims they were funded by NGOs. अब मिस्टर ऑर्टेगा को एक टाइम पे फायर ब्रांड, ठीक है, ही विच मीन्स यू विल फाइंड दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका निकारागुआ में गवर्नमेंट रेजिम चेंज चाह रहा है, सरकार बदलना चाह रहा है. और तुमको मैं बता दूं निकारागुआ में कौन मदद कर रहा होगा? रूसिया, बेटा रशिया. निकारागुआ में कम्युनिस्ट पार्टीज को सपोर्ट करने वाला रशिया ही है. तो डैनियल ऑर्टेगा और रशिया की दोस्ती इंपॉर्टेंट है. अब आपको ये साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ का पॉलिटिक्स यहाँ पे दिखाई देगा. तो ये भी हमारे रीडिंग मटेरियल है. अब देखो, जब आप लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा बवाला क्या चल रहा है. ठीक है, निकारागुआ को गूगल कर लीजिए. ये देखिए कैपिटल क्या है उसकी, मानागुआ. ठीक है, मानागुआ. अरे यार, ठीक है. कंट्रीज देखेंगे आप, कोस्टा रिका, होंडुरास, दोनों तरफ है. कोस्टा रिका, होंडुरास. ठीक है, बेलिज, गुआटेमाला, एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारी कंट्रीज जब आपको दिखाई देंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये मैप पर खो गया हमारा. और यहाँ पे पैसिफिक ओशन हो गई, इस साइड पे पैसिफिक ओशन हो गई, इस साइड पे क्या हो गई दोस्त? अटलांटिक ओशन हो गई. और ये है हसीन ऑर्टेगा. ठीक है, याद रहेगा इस आदमी का चेहरा. चलो आगे बढ़ते हैं. बहुत बोरिंग न्यूज़ है यार. कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहा हूँ मैं पढ़ाने के लिए. हाँ, मार मूर थोड़ा सा देखें तब मज़ा आए. ठीक है, रशिया ने नई सिटी जो है वो क्लेम कर ली है, अद्विवका. ये नाम याद रखिएगा, अद्विवका. ठीक है, फ्रॉम यूक्रेन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी. This is an very important city. I'll tell you why. Because look at this particular map, how Russia has captured the region of Ukraine. ठीक है, क्रीमिया तो उसने पहले ही ले लिया था 2014 में. तभी तुमको पता है कि G8 से निकाल दिया गया था माइनस रशिया, और G8 बन गया था G7. ये तो तुमको पता है. तो बहुत अच्छी बात है कि ये बात तुमको पता है. 2014 में जॉर्जिया भी कैप्चर करने वाला था, पर भगवान की दया से 2008 में ये जॉर्जिया पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए. बाद में तो गिव अवे कर दिया था. लेकिन अब जो टाउन्स हैं उनको एक बार हम ज़रूर से विजिट कर लें कि कौन कौन से टाउन्स हैं. तो ये देखिए, लुहांस्क और डोनेस्क, जिसको हम आपको पहले बता चुके हैं कि लूडो से याद रखिएगा. लुहांस्क और डोनेस्क, ये पूरा इलाका जो है इसको डॉनबास का इलाका कहते हैं. डॉनबास का इलाका. ठीक है, लुहांस्क और डोनेस्क. उसके बाद आपको दिखाई देगा ज़ैपोरिजिया. अब ज़ैपोरिजिया को ज़रा फोकस करिए. लुक एट फोकस ज़ैपोरिजिया, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबसे बड़ा. यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैपोरिजिया. उसके बाद आपको टाउन दिखाई देगा खेरसोन का. कौन सा टाउन? खेरसोन का. ज़ैपोरिजिया ऊपर है, मेलिटोपोल नीचे है, क्रीमिया इधर है, डोनेस्क इधर है. अब ये बाखमुत सिटी पे लड़ाई चल रही थी और अद्विका सिटी पे लड़ाई चल रही थी.
यानी अब उसने डोनेस्क इलाके से अपनी टेरिटरी को और बढ़ा लिया है, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि अगर थोड़ा और चले गए ये ऐसे अंदर, ठीक है, इफ दे वेंट अ लिटिल इनसाइड देन दे विल बी एबल टू क्रिएट अ न्यू फ्रंट लाइन। और अभी यूक्रेन ने इनको इतने जगह पे बांध रखा है, तो इसीलिए ये वाले जो सिटीज़ हैं, कौन सी सिटीज़, द सिटी ऑफ बाखमुत, द सिटी ऑफ अद्विका एंड द सिटी ऑफ ओराइकेव, यहाँ पे आपको एक्टिव लड़ाई दिखाई देगी, बिकॉज अदर रीजन्स आर नाउ ऑक्यूपाइड बाय दिस। और रशिया ने एक टाइम पे क्या किया था, यहाँ पे 2022 में जब उसने अटैक किया था फरवरी में, 1 फरवरी को, तो उसने मिसाइल अटैक किया था खारकीव में, और यहाँ से निकले थे 2000 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ खारकीव, है ना। तो उसने मिसाइल अटैक करके ऑलरेडी यूक्रेन को पुश बैक करने की कोशिश की थी, पर ये यूक्रेन की काबिलियत है कि उसने यहाँ पे बांध रखा है रशिया को। फिर भी यूक्रेन हैज़ लॉस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टेरिटरी एज यू कैन सी। देन द अदर थिंग दैट यू विल फाइंड इज दिस पर्टिकुलर रिवर नीपर, ठीक है। यूक्रेन टेरिटरी एज एनेक्स्ड बाय रशिया ऑन सितंबर 30, 2022। और उसके बाद आपको दिखाई देगा कि 15 फरवरी 2024 को एक्सेस कंट्रोल ऑफ टेरेन in Ukraine and main Russian maneuver access. So you will find here this. Okay, similar map hai. The map is very very similar. Okay, and you will be able to figure this out, है ना। बाकी रीड कर लीजिएगा आप यहाँ पे। बट ये नाम क्या है आपको बस अद्विका के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैप्चरिंग अद्विका कुड बी अ टाइमली बूस्ट फॉर मॉस्को एज सर्व एज पॉसिबल स्प्रिंग बोर्ड फॉर रशिया टू ड्राइव डीपर इनटू द रीजन। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो और इन अंदर चले गए तो फिर ये पूरा नीपर, देखिए उनका जो प्लान है रशिया का जो कैप्चर करने का, मेरे को बताए नहीं है, बट मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो ऐसे एक बाउंड्री खींचना चाहते हैं ताकि यहाँ का जो रिसोर्स रिच रीजन है, रिसोर्स भी है प्लस एग्रीकल्चर भी बहुत तेज है इस जगह का, एग्रीकल्चर भी मिल जाएगा, समुंदर भी मिल जाएगा, मानसून यहाँ से जो मानसून खैर नहीं आता यहाँ पे, मतलब इनके यहाँ पे जो रेनफॉल जो होती है वो क्योंकि ब्लैक सी के मॉइस्चर की वजह से होती है, ऊपर से तो स्नोफॉल हो जाती है, ये पूरा स्नोफॉल वाला इलाका है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेरिटरी क्या होती है रशिया की चली जाती है, लेकिन ये वाला जो इलाका है यूक्रेन का ये काफ़ी फर्टाइल है बिकॉज ऑफ द नीपर रिवर, डिपॉजिट्स ऑफ द नीपर रिवर। तो रेनफॉल भी मिल जाएगी आपको एग्रीकल्चर भी मिल जाएगा, आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, आपको सी एग्जिट भी मिल जाएगा, तो ख़त्म कर दो यूक्रेन को, आधा आधा कर दो, ठीक है। तो वही प्लान है, और ये आपको दिखाई देगा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मुंह पे भीगा के तमाचा है कि तुम कुछ नहीं कर पाए यूक्रेन वॉर का, ठीक है। तुम बस बह करो, एब्सटेन करवाओ, वोट करो, ये करो वो करो, तुम्हारे पास फोर्स ही नहीं है। जब तुम्हारे पास चाचा फोर्स नहीं है तो तुम क्या करवा पाओगे, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स भेज देंगे, टोपी पहना देंगे, नीली टोपी पहना देंगे, कहेंगे अरे कोई बात नहीं, गोली लग गई, खाना खा लो, दवाई ले लो, चलो हेलीकॉप्टर से बिठा के ले चलो इनको। पीस कीपिंग फोर्स किसी की गोली थोड़ी मार सकती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास अपनी खुद की फोर्स होनी चाहिए, तो नहीं, नेटो ने बना रखी है ना, नेटो देखेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी अपने को दिखाई देता है कि यार चाइना वाइना इसीलिए बड़े प्रैक्टिकल कंट्रीज हैं, इंडिया भी बहुत प्रैक्टिकल कंट्री हो गया है, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। आप चिल्ला रहे हैं, हम भी चिल्ला रहे, तुम आवाज़ तो ऊँची करोगे, हम भी आवाज़ ऊँची कर देंगे। कोई एक मीम देख रहा था मैं, कोई जाके बोल के आया था, शायद पैलेस्टीन का था कि इजराइल का था, जाके बोल के आता है यूनाइटेड नेशंस में, होमलैंड और डेथ। मतलब तुमको एक मौका मिला है यूनाइटेड नेशंस में बोलने का, और तुम क्या बोल रहे हो, होमलैंड या डेथ। यहीं ले लो तुम डेथ, होमलैंड तो नहीं मिल पाएगा तुमको आप और अभी देखो मैं बताता हूं तुमको, एक तरह का समाज है जो कि ये बोलेगा कि इजराइल हार गया। 5 मई को इजराइल ने क्या बोला, 5 मई को इजराइल ने बोला समय है भाग जाओ, रफा में हम अटैक करने वाले हैं। 5 मई को इजराइल ने डिक्लेयर करा कि बचा लीजिए खुद को, रफा की क्रॉसिंग जो बची है उसमें हम अटैक करने वाले हैं। 7 मई को चाचा नेहरू का बुलावा आ गया आपके पास, हमास ने बोला हम क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, शांति समझौता कर लेते हैं। ऑप्शन था तुम्हारे पास,
ऑप्शन था तुम्हारे पास। इजराइल कह रहा है 140 हमारे जो वो हैं किडनैप्ड व्यक्ति हैं उनकी शहादत देने के लिए हम राजी हैं, उनके परिवार वाले हमसे खफा हैं, कोई बात नहीं, हम उनको साफ कर देंगे, पर हम आपको भी साफ कर देंगे। आप ये सोच रहे हैं कि इन 140 की वजह से आप बच जाइएगा, तो आप नहीं बच पाइएगा, रफा तो हम उड़ा देंगे। तो आज जाके 7 तारीख को शांति समझौता कर लिया हमास ने, ऑप्शन था इनके पास। बात करते हैं, बकवास करवा लो इन लोगों से। तो ये चीजों को आप वही है न्यूज की तरह देखिए पर कहानी की तरह समझिए, ऐसे ही समझ में ऐसे ही मजा आता है। अब क्लाउड कंसोर्शियम बदतमीजी करेगा तुम्हारे साथ तो ये सब पूछ लेता है, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की है कि वोलोदिमिर एस ज़ेलेंस्की है कि DY है कि DI है, फालतू की चीज़ें। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी वो एग्जामिनर जो बैठा होता है ना, वो क्योंकि रहते तो सब हैं लॉ प्रोफेसर ही, अब उनको समझ में आता नहीं है जीके में क्या सवाल बनाए, तो वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं। ये आ चुका है सवाल इसके ऊपर क्लास 2022 में। रशिया का डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोगु, ये याद कर लें क्या है सर्जी शोगु, ठीक है, यू विल रिमेंबर दिस नेम। अगेन ये रीडिंग वाला पॉइंट था, बस शहर का नाम आपको याद रखना चाहिए। ये हैं यहाँ के हालात, क्वाइट सीनिक यार। शूट आउट एट लोखंड वाला। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। नहीं मस्त यार, यहाँ पे ब्राउन कलर का सूट पहन लो, ब्राउन कलर का सूट पहन लो, ऑरेंज कलर की रॉयल इनफील्ड खड़ा कर लो और एक फोटो खिंचाओ मस्त, बढ़िया लगेगा ना। ब्राउन कलर का कोट पहने हो गया आप एकदम। शर्ट किस कलर की पहनी जाएगी उसमें? एस्थेटिक, एस्थेटिक। आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं। भारत और जापान ने धर्म गार्जियन नाम की एक्सरसाइज फिर से कर ली है, 5th एडिशन कर लिया है, ठीक है। दिखाना पड़ेगा ना तुमको ऐसे न्यूज की तरह, क्योंकि मीडिया चैनल्स तो ये सब दिखाते नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको बस कुछ नहीं याद करना है, ये हुआ कहाँ पे है वो लिख लीजिएगा, राजस्थान में। 5th एडिशन ऑफ धर्म गार्जियन इज बीइंग कंडक्टेड इन राजस्थान, दैट्स इट। और यहाँ पे एक चीज आपको बता रहा है कि मिलिट्री कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, एनहांस कंबाइंड कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट जॉइंट ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन एनवायरनमेंट अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। द एक्सरसाइज वाज फोकस ऑन हाई डिग्री ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। मतलब चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है कंट्रीज को अलाउ करता है बाइलेटरल एक्सरसाइज करने का, और आपकी तरफ से राजपुताना राइफल्स की 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड इंडियन आर्मी कंटिजेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय राजपुताना राइफल्स, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिमेंबर। बॉनहोमी एंड कामराडरी, ये वर्ड अच्छे लगते हैं, ठीक है, दोस्ती, याराना, भाईचारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु लॉन्च्ड इन द गल्फ ऑफ कच्छ। केबल स्टेट ब्रिज समझ सकते हैं आप। अबे ये क्या है, इतना बिजी रहता है क्या ये? तो ये केबल स्ट्रेच्ड ब्रिज है, इसका क्या नाम है? सुदर्शन सेतु, ठीक है, सुदर्शन सेतु, ये याद रखिएगा। और ये है कहाँ पे? 4.77 किलोमीटर का है सुदर्शन सेतु, इसको सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जा रहा है, ठीक है, विच इज इन द्वारका, विच इज इन द्वारका, ओखा टाउन इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट, 978 करोड़, गुजरात का देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट, राइट। दिस इज द सी लिंक विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल हाईवे डिवीजन। ये अपने को याद नहीं करना है, ये देख लीजिएगा, नेशनल हाईवे 51। किसी क्या पता कोई कोचिंग वाले आपसे मॉक में पूछ लें, या मेरे जैसा वाहियात आदमी आपसे ये सब सवाल पूछ ले, तो आप इसको प्लीज़ लिख लें कि हाँ यार नेशनल हाईवे 51 पे बनाया गया, ये भी अपने को याद होना चाहिए। केबल स्टेट ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है केबल स्टेट ब्रिज, ठीक है। बाकी क्या है कैसा है इतना डिस्क्रिप्शन अपने को लिखना नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे वन लाइनर्स की तरह भी हैं। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है। आर्मेनिया हैज़ विड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम रशिया लेड CSTO।
Armenia has withdrawn its participation from Russia-led CSTO. Now CSTO का full form क्या है? Collective Security Treaty Organization. Collective Security Treaty Organization. See, Armenia has not left the organization but has only suspended its membership. What is CSTO? सबसे पहले देख लीजिए CSTO के बारे में ये कहा जा रहा है that it's a Russia-led regional military bloc. मतलब USSR के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो मेंबर कंट्रीज बची थी, ठीक है, उन्होंने अपना एक सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, यूएसएसआर के बाद सीएसटीओ। लेकिन उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एंटी टेरर फोर्स अलग बना रखी है, एससीओ ने अपनी एंटी टेरर फोर्स अलग बना रखी है जिसका नाम है रैपिड एक्शन टास्क फोर्स, नो रैट्स, इट्स रैपिड एंटी टेरर, अरे समथिंग यार भूल गया मैं, किसी को पता है प्लीज चैट में बता दो। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, रैपिड मैं कह रहा था, माय बैड, आई एम सॉरी, गूगल कर लिया इतनी जल्दी तुमने, मैंने भी कर लिया था। रीजनल एंटी टेररिस्ट, सर प्रीवियस ईयर के नोट्स में लिखवाया था, आप ही ने लिखवाया था। ओ माय गॉड, मैं भूल जाता हूँ यार, ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अरे भूलने का रीज़न है ना यार, हम लोग को ये सब क्या है याद नहीं करना रहता है, क्योंकि हम मतलब मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर एक चीज़ आपको ये देखिएगा कि ये परमानेंट ऑर्गन है, परमानेंट बॉडी है, और इसमें जो आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कौन सी कंट्री क्या है, कॉमन है दोनों में, है ना, ये चीज़ को आपको देखना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें कॉमन है। लेकिन आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि इस रैट्स को गवर्न करने वाली पूरी रशिया मिलिट्री होती है। तो देखिए, रशिया ने साउथ की तरफ और रशिया ने ईस्ट की तरफ, दोनों तरफ ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है अपनी, और इसके मेंबर स्टेट्स को देखिए, सिर्फ 6 कंट्रीज हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। तो हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर, आर्मेनिया हटा देते हैं हम, ठीक है, काकी ताजी, बेला और रशिया, बेलारूसिया हमेशा साथ में रहते हैं, आपको भूलने का नहीं है बात। बेलारूस और रशिया भाई भाई, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन भाई भाई। कोई बेलारूस में ही तो मार दिया वैगनर के चीफ को, प्रिगोजिन को, ठीक है। तो बेलारूसिया एक साथ रहेंगे, ये हमेशा अपने को याद रहेगा, भूलेंगे नहीं अपन। आर्मेनिया ने छोड़ दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो काकी ताजी, ठीक है, ताजी काकी, छी यार ये कोई नेमोनिक हुआ, लेकिन ऐसे याद रहेगा अपने को। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, बेलारूसिया और आर्मेनिया। इंडिया and France have emerged as key partners for Armenia. India and France have emerged for key partners for Armenia for a simple reason that सामने अज़रबैजान है। अज़रबैजान वही है, देखिए भारत फ्रांस जो हैं वो जहाँ पे भी इस्लामिक फोर्स रेडिकल होती है तो भारत फ्रांस उस देश के विरुद्ध एक साथ खड़े रहते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हम लोग एक्टिविटी करते हैं क्योंकि हम लोग उसको बांध के रखे हुए हैं, कहते चाचा संभल के चलना है तुमको, हमारे साथ संगठन में शक्ति है क्योंकि अकेले में हमारी हस्ती है, आगे बढ़िए। रशियन पीस कीपर्स व्हीकल्स आर पार्क्ड एट अ चेक पॉइंट ऑन द रोड टू सुशा इन द सेपरेटिस्ट रीजन ऑफ नगोर्नो कराबाख। नगोर्नो कराबाख किसके बीच में है, क्या लिखेंगे आप? नगोर्नो कराबाख इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच टू कंट्रीज डियर, विच टू कंट्रीज, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो कराबाख है। अब क्योंकि आर्मेनिया ने, ध्यान से देखिएगा, आर्मेनिया ने सीएसटीओ ज्वाइन कर रखा था, यानी आर्मेनिया रशिया की फोर्सेस को क्या कर रहा था, अलाउ कर रहा था नगोर्नो कराबाख में ऑपरेट करने के लिए। अब आर्मेनिया ने विड्रॉ कर दिया है क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में या नेटो के प्रेशर में या रीजनल पार्टनर्स के प्रेशर में, जो कि यूरोपियन की कंट्रीज हैं, उनके प्रेशर में आ रहा है। तो आर्मेनिया अपने आप को रशिया से अलग कर रहा है, ठीक है, नगोर्नो कराबाख में
ये अब रशिया के अगेंस्ट एक्शन लेगा, ठीक है. प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन स्पोक्सपर्सन सेड दैट अप्रैल 17, 2024 दैट रशियन फोर्सेस आर बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम द अजरबैजान Karabakh region where they have been stationed as peacekeepers since the end of a war in 2020. विड्रॉ करना पड़ गया रशिया को, यानी रशिया एक तरह का बैटल फ्रंट अवॉइड कर रहा है. रशिया कह रहा है बाबा नाटो से जितना दूर रह सको. एक नया रीजन केस्पियन सी के अराउंड, क्योंकि ये मामला कहाँ चल रहा है, केस्पियन सी के अराउंड चल रहा है. तो केस्पियन सी के अराउंड, राइट, वी डोंट वांट टू क्रिएट अनदर फ्रंट बिकॉज राइट नाउ उसका पूरा फोकस अभी ब्लैक सी के ऊपर है. अब CSTO, so after the end of the Cold War in 1991, it was the Warsaw Pact, which was an alliance of the 8 socialist states and the Soviet Union's answer to NATO, right, which was dissolved. तो Warsaw Pact बनाया था, एक्चुअली Warsaw Pact की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब 1955 में बनाया था, नेटो के बनने के 6 साल बाद. तो Warsaw Pact टूट गया क्योंकि USSR खत्म हो गया 1991 में, यानी Warsaw Pact की लाइफ थी 1955 से लेके 1991 में. तो उसके कुछ ही साल बाद, मतलब हार्डली लाइक एक साल, 1993 में मीटिंग करी और 1994 में इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स करके बना दिया एक संगठन. लेस देन अ ईयर लेटर रशिया एंड 5 ऑफ इट्स अलाइज फ्रेम्ड दिस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. इट वाज नथिंग बट पोस्ट सोवियत कंट्रीज हु वर वेरी वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स द सोवियत पावर, ठीक है. फिर धीरे से ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी साइन कर लेते हैं, कहते हैं हम एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, और ये बन गई 1994 में. इसका मतलब उस रीजन में आपको पता चलेगा कि रशिया के हिदायती हैं अभी भी. ऐसा नहीं है कि रशिया का रेलेवेंस कम हो गया है, क्योंकि काकी ताजी रशिया के साथ हैं, बेलारूसिया ये सब साथ में है. ऑल्दो इट वाजंट एज पावरफुल एज द वार्सो पैक्ट, इन 2002 सेंट्रल एशिया वाज फेसिंग लार्जर जियोपॉलिटिक टर्मोइल. अमेरिका ने अफगानिस्तान पे इन्वेड कर दिया है, ठीक है, एंड इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ आफ्टर अमेरिका इन्वेडेड अफगानिस्तान, इट केम वेरी क्लोज टू USSR, अमेरिका केम वेरी क्लोज टू USSR, इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. देखिए बना 1994 में, बना 1994 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, लेकिन उन्होंने खुद को अभी एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल नहीं दिया था और उसको उन्होंने 2002 में अपने आप को एक सिक्योरिटी फोर्स बना दिया, यानी मेंबर कंट्रीज को एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के लिए बाइंडिंग कर दिया होगा, राइट. इट वाज अ फुल ब्लोन मिलिट्री अलायंस. आज उसके पास 6 मेंबर्स हैं. उज्बेकिस्तान इज द कंट्री टू क्विट दिस अलायंस इन 2012. अगेन यू विल फाइंड कि यहाँ पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है. क्यों है? क्योंकि उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज हैं. कैसी कंट्रीज हैं? नेबरिंग कंट्रीज हैं, और इनके बीच में भी वही लड़ाई है जो भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान ईरान के बीच में है, फॉर दैट मैटर टर्की और इजिप्ट उसके बीच में है, ग्रीस के बीच में है, फॉर दैट मैटर इजिप्ट और इजराइल के बीच में है, जमीन की लड़ाई. तो बाउंड्री क्राइसिस है तजाकिस्तान. आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी बाउंड्री क्राइसिस है. तो तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान में लड़ाई झगड़ा चल रहा था 2012 के टाइम पे. उस टाइम पे उज्बेकिस्तान ने छोड़ दिया. और देखिए आर्मेनिया ने लीव नहीं किया है. आर्मेनिया ने क्या करा है? सस्पेंड करा है मीटिंग को. CSTO's ambitions have grown. 2007 में it agreed to create a 3600 strong peacekeeping force and 2 years later established a rapid reaction force comprising 20,000 elite personnel who are kept always on high alert. 20,000 जवान इनके पास मौजूद हैं मर मिटने के लिए, ठीक है. This week though was the first time that the organization invoked Article 4 which is very similar to Article 5 of NATO. Important हो गया आपके लिए. कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी का आर्टिकल 4 है जैसा कि नेटो का आर्टिकल 5 है, ठीक है, ये याद रखिएगा. CSTO का आर्टिकल 4 कहता है owing to the growing chaos in Kazakhstan, the president blamed foreign trained terrorist gangs for the protest. Nikol Pashinyan, the Prime Minister of Armenia, which holds the rotating chair of the CSTO, said the group had agreed to send its peacekeepers. In addition to Russia and Belarus, Tajikistan and Armenia also agreed to send contingents. The CSTO originates from the conclusion of the Collective Security Treaty, which was signed in Tashkent, Uzbekistan on 15 May 1992. Right? It was joined later by Azerbaijan, Belarus, and Georgia in 1993. The treaty entered into force upon completion of the national ratification procedures on April. यानी जैसा नेटो काम करता है एग्जैक्टली वैसा ही CSTO काम करता है. नेटो बना 1949 में, CSTO बना 1994 फॉलोड बाय
पहली मीटिंग जो थी, अग्रीमेंट कब साइन हुआ 1992, सिक्योरिटी कब बनाया 1994, फाइनली खुद को CSTO कब कहने लग गए 2002। तो आपको बेसिकली CSTO एज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स आर्टिकल 4 was formed in 2004 where the discussion was done ताशकेंत में हुआ था। नेटो का कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन में हुआ था। ठीक है, ये हो गया अपना ये वाला पार्ट कवर। अब बस एक टॉपिक बचा हुआ है अपना, आई गेस ओनली वन टॉपिक, नहीं 2 टॉपिक इसमें बचे हैं, स्कीम्स बची हुई हैं। ठीक है, विल कवर इट। अभी फिलहाल इतनी चीज़ों को आप लिख लीजिए और इसको रीड कर लीजिएगा। आई टेल यू एग्जैक्टली कि क्या इसमें आपको नोट्स बनाना है, दैट इज़ वेयर आई एम हेल्पिंग यू आउट, है ना। आपके नोट्स बन जाएंगे क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बस इतना याद रखिएगा कि देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके बाद कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर आया था, और उसके बाद ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आ गया है। ये ऐसे 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं इंडिया में, 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं जिनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इंडिया में है, जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 3 इंटरनेशनल, इसका ये तो सभी को पता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, और CDRI और IBCA दोनों क्या हैं? न्यू दिल्ली में है। CDRI इंडिया ने 2019 में प्रपोज करा था, 2019 में, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर किसको दोगे तुम? ऐसी कंट्रीज को दोगे जो डूब रही हैं, आइलैंड कंट्रीज, तो उनको क्या कहते हैं? SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए हमने CDRI नाम का संगठन बनाया। ठीक है, अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कैबिनेट ने अभी हेडक्वार्टर की रजामंदी दी है 29 फरवरी को, जिसमें 150 करोड़ का बजटरी सपोर्ट है। 96 कैट रेंज कंट्रीज जो 7 टाइप ऑफ कैट स्पीशीज को क्या है? होस्ट करती हैं। 2023 से लेके 2028 तक, 2023 से लेके 2028 तक 150 करोड़ में ये क्या करेंगी? सारी कंट्रीज अलाइन होंगी, और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर, राइट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर कोऑर्डिनेट करेंगी स्पीशीज कंजर्वेशन में। ड्यूरिंग द कोमेमोरेशन ऑफ 50 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन अप्रैल लास्ट ईयर, मोदी हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IBCA। ये नोट कर लीजिए, टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, बजट नोट कर लीजिए, कंट्री की संख्या नोट कर लीजिए। ठीक है, बिग कैट्स के अंदर क्या आते हैं, तो इसके लिए ये आपको दिखाई देगा। एक इंडिया अभी किस कंट्री के साथ और डिस्कस कर रहा है, तो एशियान कंट्री है। इंडिया एक एशियान कंट्री के साथ डिस्कस कर रहा है कि भाई हम तुम्हारे यहाँ से टाइगर पॉपुलेशन रिट्रीव करेंगे। भाई क्यों इतने टाइगर मंगाने हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मंगाने हैं इतने टाइगर? इतने कम पड़ रहे हैं क्या? 2160 टाइगर हैं, किस काम के हैं टाइगर? स्कैवेंजर्स हैं, ठीक है भाई। मेरे को तो लग रहा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। एक तरफ तुम जंगल काट रहे हो, फिर ये बड़े चालू टाइप के लोग हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। जंगलों में टाइगर बढ़ा देंगे, तुम तो जाओगे नहीं वहां पे, अपनी आर्मी को भेज देंगे कि चलो बेटा तुम लोग फैक्ट्री बना दो, फिर वो अंबानी चलाएगा वो फैक्ट्री। क्या ऐसा हो सकता है? मोदी जी शेर आदमी है। देखो, मोदी जी या तो आदमी हो सकते हैं, मोदी जी या तो शेर हो सकते हैं। दोनों चीजें कैसे हो सकते हैं? गजब की बात करते हैं यार। ठीक है, इंडिया और कंबोडिया के बीच में बात हो रही है, इंडिया और कंबोडिया के बीच में बात हो रही है, जहां पे वो टाइगर पॉपुलेशन को क्या करेंगे? रिवाइव करने की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने कूनो नेशनल पार्क में लोगों को लाके रखा था, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, जिसमें से मर मुरा गए 3-4 बेचारे, बट कोशिश हमारी जारी है। एक आध के बच्चे हो गए हैं, चल रहा है काम फिलहाल बढ़िया से। अभी क्या है, ग्लोबल टाइगर डे इवेंट हुआ था 2019 में, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 9, 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लास्ट ईयर हमने अनाउंस कर दिया था। इसके गवर्नेंस में देखिएगा ध्यान से, सारी मेंबर कंट्रीज होंगी, लेकिन इसकी एक काउंसिल होगी। पिछले जन्म में मोदी जी कट्टर मुसलमान थे और उससे पिछले जन्म में शेर थे। अच्छा, प्रस्तुत पंक्तियों का
इस प्रसंग से क्या लेना देना है? जिंदगी में लेना देना ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या लेना है और क्या देना है। इफ़ यू नो यू नो। अच्छा, बहुत बढ़िया। जब हमको एक्सप्लेन ना करना हो तो आपको जो समझ में आया बहुत सही समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बात करेंगे। कितनी कंट्रीज होंगी उस्ताद? 96 कंट्रीज होंगी जो एक असेंबली बनाएंगी, बैठ के बताएंगी किसको शेर चाहिए और किसको पूमा चाहिए, किसको लेपर्ड चाहिए, क्या करना चाहिए हमको। इनकी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी जिसको आप काउंसिल कहेंगे। उस काउंसिल में 15 सदस्य चुने जाएंगे 5 साल के लिए। उनका एक सचिवालय होगा, अपना एक ऑफिस होगा। काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल पे जो जनरल असेंबली है वो एक सेक्रेटरी जनरल को चुनेगी फॉर अ स्पेसिफिक टर्म। तो भैया ये न्यूज़ जो है इस पे नज़र गड़ा के रखिएगा, क्योंकि हमने स्कीम बना दी, कंट्री जोड़ दी, हेड कमरा बना दिया, अब आदमी बिठाने की तैयारी होगी। तो सेक्रेटरी जनरल किसको चुना जाता है इसके ऊपर हम नज़र बना के रखेंगे। 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें अपना हाथ पैर घुसा रही हैं, जिनका IUCN नाम है, वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल नाम है, जो ये अलायंस को ज्वाइन करेंगी। ठीक है, तो जिनके नाम आ गए हैं उनको ज़रूर ध्यान से रखेंगे। बाकी जो संगठन में शक्ति है, क्योंकि अकेले में हम हस्ती हैं। सो फार 16 कंट्रीज हैव गिवन देयर रिटन कंसेंट टू बी द पार्ट ऑफ IBCA। प्लान है 96 को जोड़ने का, लेकिन जुड़े अभी तक कितने हैं? 16। ठीक है, ये खूबसूरत चेहरे। टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, ये नंबर याद रखिएगा 3167। बब्बर शेर 674 और इफरात में घूम रहे हैं चीता, सॉरी लेपर्ड 12,852। संख्या याद रखिएगा, टाइगर 3167, बब्बर शेर 674 और लेपर्ड्स 12,852। अरे यार रुको रुको, नहीं, इसमें ज्यादा अमित शाह बीच में नहीं, मोदी जी। ये देखो, ये ज्यादा सैफरन है, ये भगवा रंग इसका ज्यादा है। यही, सॉरी, ये तो योगी लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, ज्यादा भगवा रंग वाला आदमी योगी होगा, सही बात है। ठीक है, आर यू कॉलिंग देम बिकॉज भैया मोदी जी और ये योगी जी तो गंजे हैं और इसके तो बाल हैं। अरे यार, योगी इन पैरेलल वर्ल्ड, योगी आदित्यनाथ इन अ पैरेलल वर्ल्ड, endangered species फॉर अ रीजन। नहीं अर्पित, दे आर नॉट endangered species, इनकी वजह से बाकी पीपल आर endangered। और आंकड़े भी बता रहे हैं कि इनकी तादाद 2014 से लेकर 2022 में बढ़ी है। क्या बात है। पॉलिटिकल सटायर हो गया ये तो यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यही मेरा मंगलसूत्र बचा सकते हैं। तुम अनुपमा कम देखा करो यार। भैया मैं तो कुमकुम भाग्य देखता था। ये क्या है? ये सब नहीं पता अपने को यार। ओजी शो है भैया, आपने नहीं देखा? नहीं। कोई बात नहीं भैया। ठीक है, कभी कभी अच्छे काम मैं भी कर लेता हूँ। अभी क्या है, इसमें कुछ डेटा हमारे सामने है, आप इसको चाहें तो स्टेट बाय स्टेट ओवरव्यू कर लीजिएगा। लेकिन इसमें आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा गदर इन लोगों ने मध्य प्रदेश में मचा रखी है। ठीक है, मध्य प्रदेश इज़ अ स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें जो स्टेटस ऑफ द लेपर्ड रिपोर्ट आई है वो भी इसी से रिलेटेड है, विच वॉज released by Environment Ministry. There are an estimated 13,874 leopards in India, up from 12,852. 13,874 ये पुराना डेटा है 2018 का। अभी क्या हो गया है? 13,874। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस स्टेट ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट। टाइगर्स अपने को याद रहेगा, लेपर्ड भी याद कर लेंगे। 13,874 हो चुके हैं 4 साल में। हमने सर्वे कराया स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट्स इन इंडिया 2022, राइट। इंडियन लेपर्ड्स पैंथेरा पारदूस फुस्का। नाजा नाजा बताओ किसका नाम है?
साइंटिफिक नेम किसका है? नाजा नाजा, किंग कोबरा। पर एक मूवी बनी थी इच्छाधारी नाग पे, उसमें गाना था आजा आजा, सुना है तुमने वो एपिक सॉन्ग? नहीं सुना है? ये याद रखिएगा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस इज टाइगर, ठीक है, और पैंथेरा पारदुस फुस्का इज इंडियन लेपर्ड, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन नेपाल, भूटान एंड पार्ट्स ऑफ पाक। वाह योगी जी वाह, सही जगह पहुंच गए आप। नेपाल, भूटान एंड पार्ट ऑफ, मेरे हिसाब से इनको वापस आ जाना चाहिए क्योंकि कहीं ये लोग उनको मार के ना खा जाएं। लाइक लायंस, पैंथेरा, लियो, लेपर्ड्स केम टू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट, मोस्ट लाइकली इथियोपिया। क्यों? Why did you come from the west? Accordingly to the release report, central India and eastern Ghats has the highest population of leopards, followed by western Ghats, Shivalik Hills and Gangetic Plains. Madhya Pradesh boasts the largest population of leopards, followed by Maharashtra and Karnataka. So 1, 2, 3 you will always remember Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka. Okay. Nonetheless, leopard populations have declined in a few regions. ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती रहती हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद G33 कंट्रीज वाला मामला भी डिस्कस कर लेते हैं। G33 कंट्रीज एक्चुअली है क्या? These countries are called as friends of special products. These countries are called as friend of special products क्योंकि ये वो 33 देश हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो कि राशन कार्ड जैसी सुविधा या कह लीजिए बफर स्टॉक, गेहूं चावल फसल का बफर स्टॉक बनाने में विश्वास करते हैं। यानी ये वो 33 कंट्रीज हैं, ये वो 33 कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप नेशंस के साथ जिनमें भी फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस आ जाता हो, इस वजह से कि इनके यहाँ पे रेनफॉल प्रॉपर नहीं होती, एग्रीकल्चर इनके यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, ओके, फार्मर्स इम्पॉवरिज्ड हैं, तो ये सब लोग जब अनाज होता है तो एक साथ एक कमरे में बंद कर देते हैं, गोडाउन में बंद कर देते हैं और फिर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। अच्छा, जब आप पब्लिक स्टॉक होल्डिंग कर लेते हैं, यानी जब सरकार कई हजार लाख टन में, ठीक है, 1000 लाख टन में गेहूं चावल को अपने पूरे देश में स्टोर करती है, 84 करोड़ बेनिफिशियरीज को ये राशन कार्ड के थ्रू राशन देती है, तो इससे एक्चुअली में प्राइस मैनिपुलेशन हो जाता है गेहूं चावल का। क्या हो जाता है? प्राइस मैनिपुलेशन हो जाता है। तो G33 जो ग्रुपिंग है इज अ फ्रेंड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर, फ्रेंड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर is a coalition of developing and least developed countries, is a coalition of developing and least developed countries. Currently G33 में you will find that there are 47 countries, not just 33 but 47 countries, and look at the name of the countries, सभी आपको tropical region की countries दिखाई देंगी जहाँ पे agriculture है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस, टर्की, तंजानिया, कीनिया, साउथ कोरिया। It was established prior to the 2003 Cancun Ministerial Conference that have coordinated during the Doha round of WTO. Now what is this Doha round of WTO? Doha round of WTO is with respect to agriculture only, जहां पे डेवलप्ड कंट्री ने कहा था कि चलो ठीक है यार, कुछ हद तक तुम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कर लो क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस होती है। नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज डोमिनेटेड बाय इंडिया राइट नाउ बिकॉज हमारे यहाँ पे एमएसपी को लेके बहुत बवाल चल रहा है और हम एमएसपी को लीगल नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि WTO का भी प्रेशर है हमारे पास, लेकिन एमएसपी हम प्रोवाइड करते हैं और हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की जो बॉडी है, वेयर हाउस बना रखा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो फसल खरीदता है, अनाज खरीद के उसको बफर वेयर हाउसेज में बफर स्टॉक की तरह स्टोर करता है। तो यहाँ पे WTO में जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री की तरफ से, तो ये कंट्रीज मिल के डिफेंसिव कंसर्न्स अपने रेज कर रही हैं। They are seeking to limit the degree of market opening required of developing countries. The group has advocated the creation of special products exemption, which would allow developing countries to exempt certain products from tariff exemptions, and also a special safeguard mechanism which would permit tariffs increases in response to import surges.
इन रिस्पॉन्स टू इम्पोर्ट सर्चेस। मतलब कि अगर हमारी कंट्री में लेट्स से वी आर मैन्युफैक्चरिंग और वी आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ व्हीट एंड अ हायर ग्रेड क्वालिटी ऑफ व्हीट स्टार्ट्स कमिंग इनसाइड आवर कंट्री इन पैकेज्ड मटेरियल, है ना, पैकेट्स में आने लग जाए मान लो अमेरिका से, तो लोगों की आदत होती है भाई, कभी कभी खुले में सब कोई गेहूं आटा, खुला आटा नहीं लेते हैं लोग, पैकेज आटा लेते हैं। तो पैकेज आटा मान लीजिए भारत की कंपनी का है तो ठीक है, अगर अमेरिकन कंपनी का पैकेज आटा आने लग गया आपके कंट्री में और इंपोर्ट उसका बढ़ने लग गया फॉर वट एवर रीजन, क्वालिटी अच्छी हो, सस्ता हो, जो भी, तो आपकी कंट्री क्या लगा देगी उसमें, टैरिफ मार देगी। टैरिफ मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स मारने से क्या होगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, है ना, और आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक सेलर्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच जाएगा इंटरनेशनल प्रेशर से। एक्चुअली होता क्या है, जब आप WTO का हिस्सा बनते हो तो WTO में 164 कंट्रीज हैं, वो आपसे ये अपेक्षा करती हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को उनके प्रोडक्ट्स के लिए खोल के रखें। और आप अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हो, इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा के, है ना। किसी प्रोडक्ट पे तुमने टैक्स बढ़ा दिया तो वो तुमको भेजेगा तो, पर तुम्हारे यहाँ पे उसकी जो कहते हैं ना प्राइस भी बढ़ जाएगा ना, टैक्स बढ़ गया तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, तो लोग कम खरीदेंगे। तो ये चीज WTO क्या करता है, प्रमोट नहीं करता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे मोबाइल फोन है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी भी है, वैक्सीन के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी कि वैक्सीन बनाने वाली टेक्नोलॉजी जो है, ये सभी चीज़ों को, जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, ये सब होते हैं, इनको ओपन करिए। तो आपको इसमें बेसिक याद रखना है, G33 में 47 कंट्रीज हैं। ये 2003 के कैनकन डिस्कशन के बाद बनाया गया था। दोहा राउंड ऑफ WTO किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये 3-4 चीज़ों को बस आपको लिखना है, ठीक है। क्या कंसर्न्स रेज किए हैं अबू धाबी में, क्योंकि वर्ल्ड मिनिस्टेरियल, जैसे मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, 13th मिनिस्टेरियल अरे यार सॉरी 13th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पे हुई है, WTO की अबू धाबी में, ठीक है। और यहां पे G33 कंट्रीज ने स्पेशल टैरिफ एग्जेम्पशंस मांगे हैं। ठीक है, स्पेशल टैरिफ एग्जेम्पशंस मांगे। अब WTO के बारे में बहुत बेसिक सी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि ये कब बनाया गया था। तो यू नो दैट इट वाज फॉर्म्ड अंडर माराकेश एग्रीमेंट, है ना, और इसको बनाया गया है 1995 में। WTO ने रिप्लेस किसको किया है, इट हैज रिप्लेस GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट को रिप्लेस किया है जेनेवा स्विट्जरलैंड, Geneva, Switzerland, 164 countries, Geneva, Switzerland, 164 countries, and the Secretary General is Chilgozi. ठीक है, remember her name, Chilgozi, first African and first woman and first African woman and first black फर्स्ट ब्लैक वुमन सब थी हैं, नगोजी अकोंजो-इवेला टू हेड WTO। मराकेश एग्रीमेंट 1994 रिप्लेसिंग जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ, जेनेवा स्विट्जरलैंड, 164 कंट्रीज। इतना याद रखिए। उसके बाद आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे दोहा राउंड ऑफ WTO, G33 कंट्रीज, फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर हेडेड बाय इंडिया विथ 47 नेशंस, फॉर्म्ड आफ्टर 2003 कैनकन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिमेंबर, एंड द मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी एंड बफर स्टॉक। क्लियर, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपके ऊपर अभी, नाउ आई एम गिविंग यू अ टास्क, व्हाट आई एम गिविंग यू अ टास्क इज दैट you should read about what is this, what is the conflict in this, how it is related to climate change. Okay, प्लीज अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। आप पढ़ेंगे आज, you will try to read about कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस, क्या होता है कार्बन टैक्स, है ना, क्यों यूरोपियन यूनियन इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं,
और उसकी वजह से आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, या आपके एक्सपोर्ट यूरोप में खरीदे नहीं जा रहे, प्रोडक्ट्स खरीदे नहीं जा रहे क्योंकि वो महंगे हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि हम एक ऐसी कंट्री से प्रोडक्ट ले रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा किया, 900 चूहे खा के आज बिल्ली हज को चली है, पूरा क्लाइमेट चेंज इनकी वजह से हो चुका है, बर्बादी ये कर चुके हैं। अब ये तुमको प्रोडक्ट, कॉलोनाइजर्स विल बिहेव लाइक कॉलोनाइजर्स। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में दे आर इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग फ्रॉम अ कंट्री which has high incidence of carbon dioxide emissions. Okay, that is what is the problem. The carbon border adjustment mechanism will translate into a 20 to 35% tax on select imports into the EU starting from 1st January 2026. India's 26.6% of exports of iron ore pellets, iron, steel, aluminium products go to the EU. अब भैया सभी बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो भयंकर होती है, तुम इस पर टैक्स लगा दोगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। दीज प्रोडक्ट्स विल बी हिट बाय कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इंडिया एक्सपोर्टेड दीज गुड्स वर्थ ₹7.4 बिलियन। लुक एट द मैग्नीट्यूड, मैग्नानिमिटी ऑफ द एक्सपोर्ट, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। बट स्टील, फर्टिलाइजर, ये सब क्या है? इट विल बी अ प्रॉब्लम. So please read more about carbon border adjustment mechanism today. Try to figure out that what is the problem going on, what are the ancillary facts around it, right? Okay, what is the carbon credit, carbon trading scheme and all of that, and I'll give you a detailed discussion on this particular topic, right? बाकी सब जो भी है वो हम ऑलरेडी आपको, I have already told you this. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को जब डिस्कस करेंगे तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में लगाया। हमने कहा कि अगर बर्बादी हम लोगों ने मिल के नहीं की है तो इसमें जो खामियाजा भुगतना है या जो कंपेंसेशन देना है वो बराबरी से क्यों दिया जाए। उसमें भी तो देखा जाए कि जिसने ज़्यादा बर्बादी करी उस पर ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो इसको कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ के ज़रूर आएंगे। बाकी देखो G33 कंट्रीज़ का ये मैप है, एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं, देख सकते हो तुम, फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर एट WTO। लेकिन इसमें भी सारी कंट्रीज़ एकजुट होकर साथ में साथ नहीं देती हैं, ठीक है, तो आपको वो पता चलेगा। बाकी WTO हो गया, ये हो गया, 2-3 योजना वाले वो बचे हुए हैं टॉपिक, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हुए आई विल मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द मार्च, ठीक है, सॉरी सेकंड पार्ट ऑफ द मार्च करंट अफेयर्स। मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ द मार्च करंट अफेयर्स दे दूंगा और उस टाइम पे ये भी आपको बता देंगे, बट इसमें आप स्कीम्स को लिख लीजिए बस। PM अजय का क्या काम है? तो PM अजय इज़ फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। किसके लिए है? PM अजय का क्या काम है? अनुसूचित जाति, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है, जिसमें हमें आदर्श ग्राम बनाने हैं, ठीक है, आदर्श ग्राम बनाने हैं। शेड्यूल कास्ट की जो डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनको आदर्श ग्राम बनाना है। उसमें क्या दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में आप रीड करिएगा, बिल्कुल रीड करिएगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री सूर्य घर है, जिसमें हम लोग रेजिडेंशियल रूफ टॉप सोलर स्कीम है, ठीक है, 60% इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है 2 किलोवाट सिस्टम की, 40% एडिशनल सिस्टम कॉस्ट जो है 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी की सरकार देगी। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है, आप इसमें क्या दे रहे हो, लोगों को रुपया दे रहे हो। 3 किलोवाट तक का, आप पता है 3 किलोवाट तक का घर पे सोलर पैनल लगा लो, 1 से 1.5 लाख रुपए में लग जाएगा। छत पे मस्त धूप भी बचेगी और तुम्हारा बिजली का बिल जो है वो हाफ हो जाएगा। अपने घर वालों को बोलो कि 1 से 1.5 लाख का सोलर पैनल लग रहा है, और 500 गीगावाट तक की सोलर कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचने में भारत में अपने अपने घरों की छत का योगदान आप दें। ये PM सूर्य घर का मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है, ठीक है, ये भी पार्ट है। साथ में आप देखेंगे इस स्कीम में एक सोलर विलेज भी बनानी है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रूफ टॉप सोलर इन रूरल एरियाज को भी क्या करेगी, प्रमोट करेगी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जबरदस्ती इसके लपेटे में जरूर से लिया जाएगा। और स्कीम प्रोवाइड्स अ कंपोनेंट फॉर पेमेंट सिक्योरिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी बेस्ड मॉडल्स एज वेल एज फंड फॉर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स इन RTS, ठीक है।
ये बाकी स्कीम है। तो पीएम सूर्य घर हो गया, ठीक है, मुफ्त बिजली योजना 35,000 करोड़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत्स। क्लियर है? सो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स फिर हमने डिस्कस कर लिए। बाकी आपको नोट्स बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बता दीजिएगा। ये वाला टॉपिक बचा हुआ है, इसको रीड कर लेना यार, ये रीडिंग मटेरियल है। क्या है? भारत की पहली पंचांग क्लॉक जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी में तुमने निकाली, इसको विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक बोला गया है। ठीक है, कहाँ पे इंस्टॉल की गई है? कहाँ पे इंस्टॉल की गई है? तो जंतर मंतर इन उज्जैन पे, नियर जीवाजी ऑब्जर्वेटरी। क्या करती है? 30 तरह के मुहूर्त तिथि वैदिक हिंदू के हिसाब, पंचांग के हिसाब से, संवाद, मास, मून पोजीशन, पर्व, शुभ शुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब चीज़ों को बता देती है। अच्छा, ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, ठीक है, कहाँ पे की गई है? बस याद रखिएगा, उज्जैन सिटी में की गई है। जय श्री महाकाल। सभा समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।